Hello, good morning students. Hope you all are fine. Today we will see your English supplementary chapter number 6. I want something in a cage. See children, what is the name of the chapter? I want something in a cage. Okay, all of you know what is cage. Okay, what is cage? Can anyone? Cage means a place, a thing where you can keep the birds. Okay, बर्ड्स को रखने का एक पिंजरा, उसे हम केज कहते हैं, है ना. सो द चैप्टर नेम इज आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर. Okay children, chapter 6, I want something in a cage. Now see children, Mr. Purcell did not believe in ghost. Okay, see here one character, Mr. Purcell is there, and he did not believe in ghost. All of you know ghost? Okay. Nevertheless, the man who brought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. Okay, now see what happened. The man who bought the two doves, okay, two doves, and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense. Okay, as though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. Okay, see what they have felt, that they lingered the musty smell of haunted house. Okay, any haunted house smell. Now see, Mr. Purcell was a small fuzzy man, red cheeks and a tight melon stomach. Okay, see here is the description of Mr. Purcell. He was a small fuzzy man. Okay, छोटे कद वाला, रेड चिक्स, उसके चिक्स एकदम रेड थे, एंड अ टाइट मेलॉन स्टमक. टाइट मेलॉन स्टमक मीन्स जैसे तरबूजा कैसे होता है, गोल गोल, ऐसे उसका स्टमक था. ओके, लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जेन्युइन ऑल. सी ही वॉज बियरिंग अ लार्ज ग्लासेस, बड़े बड़े कांच वाले चश्मे. ओके, उसमें से उसकी आंखें ऐसे लगती थी जैसे उल्लू की आंखें लग रही हो. ओके, ही ऑर्ड अ पेट शॉप, उसका खुद का एक पेट शॉप था. ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज, वो क्या बेचता था? कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज. ही डील्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, फिश फूड भी डील करता था, फिश फूड का भी, और बर्ड के सीड, जो बर्ड दाने खाते हैं, उसका भी. प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर ailing canaries and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. अब सी, साथ में वो क्या रखता था? पूरी रो उसके केजिस से उसने केजिस लगाए हुए थे, पिंजरे. He considered himself something of a professional man. वो खुद को ऐसा मानता था जैसे वो एक प्रोफेशनल मैन हो. Now see children, a constant stir of movement pervaded his shop. Whispered twitters, sly rustling, squeals, cheeps and sudden squeaks. ओके, सबकी आवाज़ें उसके शॉप में आती रहती थी क्योंकि बर्ड्स थे, सबकी स्क्वील्स, चिप्स, अलग अलग आवाज़ें. ओके, स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स, फ्राइटन्ड, bewildered, blindly seeking. Across the sleeves pulsed this endless flicker of life. But the customers who came in said, aren't they cute? Okay, मीन्स उसे देखकर थोड़ा ऐसा लग रहा था, बट जो भी कस्टमर आते थे वो बोलते थे aren't they cute? वो क्यूट नहीं है. Look at that little cage, they are very sweet. And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hands and emphatically shake his head. Okay, क्योंकि वो तो पूरे दिन इन लोगों के साथ ही रहता था, ये बर्ड्स और ये सारी आवाज़ सुन सुनकर वो बोर हो जाता था. पर कोई भी कस्टमर आते थे वो क्या कहते थे? आरन दे क्यूट, वो बहुत क्यूट नहीं है. तो अब क्या करे? तो मिस्टर पर्सल भी उसके सामने सिर्फ ऐसे स्वीट सी स्माइल देता था, ऐसे हैंड्स रब करता था
and shake his head. हाँ, वो भी ज़बरदस्ती मुंह हिला देता था कि हाँ स्वीट है, बाकी पूरे दिन उसके साथ रहो तो पता चले ना कितने स्वीट है. Okay, now see children, each morning when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news. Okay, अब हर सुबह वो क्या करता था, जब उसकी शॉप वो खोले और उसका रूटीन वर्क कंप्लीट हो जाए शॉप का, तो वो अपने हाई स्टूल चेयर जैसा था उस पर वो बैठकर न्यूज़पेपर मॉर्निंग पेपर वो रीड करता था. ओके, एज ही रीड ही वुड स्मिक, फ्राउन रिफ्लेक्टिवली, पर्स हिज लिप्स नोइंगली, लिफ्ट हिज आईब्रोज, नॉड इन ग्रेव अग्रीमेंट. ओके, मीन्स वो पढ़ते जाता था और वो सब कुछ न्यूज़ रीड कर कर वो या तो कुछ बड़बड़ाता था या तो उसकी आईब्रो ऐसे ऐसे करता था और या नोड मुंडी हिलाता था. ओके, he read everything, even advice to the lobon and the details columns of advertisement. वो न्यूज़पेपर में सब कुछ पढ़ता था. किसी ने अगर कुछ एडवाइस दी हो, कोई डिटेल कॉलम ऑफ एडवर्टाइजमेंट हो, एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ता था. एवरीथिंग ही रीड, वॉट एवर वॉज देयर इन द न्यूज़पेपर. ओके, हर एक चीज़ वो रीड करता था. नाउ सी, इट वॉज अ रफ डे. A strong wind blew against the high plate glass windows. Okay, रफ डे था और स्ट्रॉन्ग बहुत तेज़ हवा चली. ओके, उसकी विंडो में से आई. Smoke filmed the wintry city and the air was grey with a thick frost. Okay, now see, कैसे ठंडी में हर जगह मिस्ट नज़र आता है ना, तो वैसे ही हवा भी आ रही थी और थिक फ्रोस्ट मीन्स वो मिस्ट की वजह से एकदम विंटरी सिटी लग रहा था, स्मोक जैसा लग रहा था. नाउ हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर. ओके, उस दिन भी सेम मिस्टर पर्सल ने अपना जो रेगुलर वर्क होता है शॉप का वो कंप्लीट करके सुबह फिर वो स्टूल पर बैठ गए एंड स्टार्टेड रीडिंग द मॉर्निंग पेपर. He adjusted his glasses and glanced at the day's headlines. Okay, ऐसे उसने glasses ठीक किए और फिर headline पढ़ना शुरू किया. Cheeping and speaking and mewing vibrated all around him. Okay, हर जगह birds की आवाज़ आ रही थी and mewing क्योंकि cats और वो सब भी था तो mewing की आवाज़ भी आ रही थी. But yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of familiar clock. ओके, बट मिस्टर पर्सल को फिर भी क्या ज़्यादा सुनाई देता था, टिकिंग ऑफ अ फेमिलियर क्लॉक. उसकी क्लॉक थी जो जिसमें वो बजता है ना, वो उसे टिक की आवाज़ सुनाई देती थी. ओके, नाउ देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेनेवर अ कस्टमर एंटर्ड. अब उसके ऊपर एक शॉप में अंदर एक बेल था डोर के ऊपर जो जिंगल्ड होता था जब कस्टमर एंटर होता था. ओके, सो दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग. Simply he glanced up and there was the stranger standing just inside the door as if he had materialized out of thin air. ओके, नाउ इस मॉर्निंग क्या हुआ, पहली बार मिस्टर पुर्सल को किसी ने बुलाया. इट फेल्ड टू रिंग और वो बेल नहीं बजा. सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर. और वो खड़े हुए और उसने देखा कि कोई स्ट्रेंजर है जस्ट दरवाजे के अंदर खड़ा है. एज इफ ही हैड मटीरियल्स आउट ऑफ थीन एयर. ओके, द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल. वो स्टूल से खड़ा हुआ. From the first instant, he knew instinctively, unreasonably, that the man hated him. But out of habit, he rubbed his hands briskly together, smiled and nodded. Okay, what he said, "Good morning." He beamed. Okay, what can I do for you? Okay, customer को उसने बोला good morning. What can I do for you? Now the man's shiny shoes squeaked forward. His suit was cheap. उसका शूट था जो पहना हुआ बहुत ही cheap था, इल फिटिंग था, बट ऑब्वियसली न्यू पर नया था. ही हैड अ शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रैप्ड हेयर. ओके, उसके बाल भी ऐसे घुंघराले थे थोड़ा.
Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop. Okay, उसने चक्कर लगाया उसके शॉप में. On nasty morning, volunteered the shopkeeper. और उसने शॉपकीपर को वॉलंटियर किया. He clasped both hand across his melon like stomach and smiled importantly. उसने क्या किया, वो शॉपकीपर के पेट पर ऐसे ऐसे हाथ घुमाया, क्योंकि मेलॉन जैसा स्टमक था ना उसका, तो और वो हंसा. I see by the paper we are in for a cold spell. Now what was it you wanted? Okay, means आपके पास इतना कुछ है. ओके, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, इतनी अच्छी तेज़ हवा है, कोल्ड है. नाउ व्हाट यू वांट, अब आपको और क्या चाहिए? I see, hastened the storekeeper, not at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. Okay, अब शॉपकीपर ने बोला ओह आई सी. ओके, और उसने अपनी आंखें ऐसे की और नाउ लेट मी थिंक, अ वाइट रेड परहैप्स, मीन्स उसने बोला कि ओके आपको वाइट रेड चाहिए. आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रेड्स. ओके, उसने बोला मेरे पास बहुत अच्छे नाइस वाइट रेड्स है. नो सेड द मैन, बट मैन ने बोला नो नॉट रेड्स, समथिंग विथ विंग्स, मुझे कुछ विंग्स के साथ चाहिए, समथिंग दैट फ्लाइज. अ बर्ड, एक्सक्लेम मिस्टर पर्सल. मिस्टर पर्सल ने बोला ओके बर्ड चाहिए आपको तो. A bird's all right. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds, doves. Okay, अब कस्टमर ने देखा कि एक केज में दो डव्स थे. उसने पूछा हाउ मच फॉर दोज, उसकी क्या प्राइस है? 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर. एकदम तुरंत आंसर आया 550. एंड अ वेरी रिजनेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर. ओके, 550 इसकी प्राइस है, बहुत ही रिजनेबल है, और ये पैर भी बर्ड्स की फाइन है. 550, द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन. ओके, मीन्स उसे ऐसे कितना महंगा ऐसे. ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल. ओके, वो $5 भी का भी बिल बनाया ऐसा था. आई हैड लाइक टू हैव दिस बर्ड्स बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट. मुझे ये बर्ड पसंद है, मुझे चाहिए, बट मेरे पास इतने ही पैसे हैं. ओके, जस्ट $5. Now see, mentally Mr. Purcell made a quick calculation which told him that a 50-cent reduction he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. Okay, now see, mentally Mr. Purcell ने क्या सोचा, उसने क्विक कैलकुलेट किया और उसके दिमाग में चला कि चलो अगर मैं 50 का रिडक्शन करूँ फिर भी मुझे काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा. ओके, so what he said, my dear man, if you want them that badly you can certainly have them for $5. मीन्स चलो आप अभी आपको पसंद आ ही गए, आपको चाहिए तो मैं $5 में दे देता हूँ. ओके, so I will take them. He said his $5 on the, he laid his $5 on the counter. ओके, और उसने बोला I will take them, मैं उसे लेकर जाता हूँ, और $5 उसने काउंटर पर रखे. Now Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the cage and handed it to his customer. अब मिस्टर पर्सल चले, टिपटॉ मीन्स चल के, उसने केज अनहुक किया और उसको हैंडेड किया कस्टमर को. द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड, लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप. दैट नॉइज, ही ब्लॉटेड, डजंट इट गेट यू. ओके, अब कस्टमर ने ये आवाज़ सारी सुनकर उसने बोला डजंट इट गेट यू, मीन्स आपको डिस्टर्ब नहीं होता पूरे दिन. द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, बट ऑडली इनफ ही couldn't. He heard himself dutifully asking, why, how long did it take you? Okay, the other laughed. 10 years at hard labor, means मेरे 10 साल हो गए. 10 years to earn $5, 50 cents a year. Okay, 10 साल हो गए और मैंने $5 कमाए. ओके, 50 cents a year, पूरे साल के 50 cents हुए. It was best. Purcell decided a humor him. My 10 years? That's certainly a long time now. They give you $5, laughed the man, and a cheap shoot and tell you not to get caught again. Okay? उसने आपको $5 दे दिए ऐसा.
ओके, क्योंकि एक मर्चेंट आया था उसकी बात यहाँ हो रही है, दोनों मिक्स मत करना, वो कस्टमर अलग था और ये मर्चेंट अलग था। ओके, द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, मर्चेंट को ऑर्डर देना था इसलिए उसने ये सब कुछ पूछा, और उसने पूछा कि अभी अभी एक कस्टमर आया था और उसने मुझे $5 दिए हैं। ओके, इसलिए वो बोल रहा है दे गिव यू $5 and a cheap shoot and tell you not to get caught again. Mr. Purcell mopped his sweating brow. Now about the care and feeding of your dogs, I would advise. The man swung around and stalked abruptly from the store. Purcell sighed with sudden relief. He waddled to the window and stared out. Just outside. Okay, Purcell ने विंडो में से आउटसाइड देखा. His peculiar customer bed-halted. He was holding the cage shoulder high, staring at his purchase. Okay, उसने केज ऐसे उठाकर ऊपर रखा था एक हाथ में. Then opening the cage, he reached inside and drew out one of the doors. उसने केज ओपन किया और उसमें से एक डो को निकाला. He tossed it into the air. उसने हवा में उछाला. He drew out the second and tossed it after the first. दूसरा निकाला, दूसरे को भी उड़ा दिया. They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. Okay? और वो फिर विंटरी सिटी में लॉस्ट हो गए, मीन्स आकाश में वो उड़ने लगे. ओके, सो फॉर एन इंस्टेंट द लाइब्रेटर्स साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर हिम. Then he dropped the cage. He showed both hands deep in his trousers pocket, hunched down his head and shuffled away. Okay? उसने केज नीचे रखा, दोनों हाथ ट्राउजर के पॉकेट में डाले और सर झुकाए वो चल दिया. The merchant's brow was puckered with perplexity. So desperately had the man desired the doves that he had let him have that at a reduced price, and immediately he had turned them loose. Now why, Mr. Purcell muttered, did he do that? He felt vaguely insulted. ओके, जब उसने देखा कि वो $5 में उसे खरीद कर गया और इमीडिएटली बाहर ले जाकर उसने उड़ा दिया, ऐसा क्यों किया? मिस्टर पर्सल खुद ही सोच रहे थे कि वाई डिड ही डू डैट, ऐसा क्यों किया, और उसे खुद ही इंसल्ट फील हो रहा था क्योंकि इतने टाइम से वो सारे बर्ड्स को अंदर कैद करके रख रहा है और इस आदमी ने खरीद कर उसे आज़ाद किया, तो इसलिए उसे थोड़ा insult जैसा feel हुआ. Okay, written by L.E. Grieve. Okay children, this chapter is written by L.E. Grieve. Now see student, what you have to do is you have to write question answer of this chapter in your fair book. Okay, thank you. Stay home, stay safe.